हेलो ठीक यस सो ये बड़ा इजी है मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड इफ यू रिमेंबर द डाइजेशन है ना डाइजेशन आपको याद ही होगा दिस इज द डाइटरी पार्ट fat ingested in diet gallbladder and then bile salts are there है ना we have discussed a lot about that different kind of bile salt two type of bile salts are there that emulsify dietary fats in small intestine forming mixed micelle there is small intestinal mucosa then there is a apoC which is helping in formation of chylomicrons right so chylomicrons, triglycerols are incorporated with cholesterol and apolipoproteins into chylomicrons. We have discussed that. Okay. So chylomicrons move through the lymphatic system and bloodstream to tissue, and then lipoprotein lipase activated by apoC in the capillary converts triglycerol to fatty acid and glycerol. So up to here we have discussed. Okay. So I think you remembered it, and you did well in the test. I was watching your test, that was very good. One question was wrong from my side, alanine to glutamine. So you marked correctly, but so I was just checking, right? So you should not, it means your NTA score is more than 80% this time also. So but you have to cross the 90 limit, you have to avoid all the questions that are in the confusion. You have to avoid that. So if you are avoiding, automatically you are reaching to the target. Because NTA score is totally different from your actual score. Okay. NTA score, how is it calculated? This is calculated based on your accuracy score. This is exactly accuracy score. Oh, okay. Okay. Suppose you are getting 78 marks, but your accuracy score is maybe 85, maybe 90, maybe 99. Means how much questions you are not taking as a doubt. So that is the NTA score. That is different from the actual score. So NTA score has a different calculation criteria based on the number of students appearing and all that. So we are not considering that. We are directly because the students are less, so we have removed that formula. Rather than directly we have inserted this formula that based on your wrong answers. If you are doing the less mistakes, then your NTA score is high. So this is your practice exactly. How much you are confident, है ना? You have put your all the energy. मतलब एग्जाम में जाके तो घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, है ना? तो एक तो याद रखना कि 9 to 12 वाले टाइम में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है विदाउट मूविंग योर सेल्फ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम शेड्यूल देख लो कि दिन में कब होता है और दोपहर में तो शायद नहीं होता है, 3 घंटे का ही होता है. तो उस टाइम पे आपको थोड़ा अपना मेटाबॉलिक फंक्शन हाई रखना है. मतलब यू हैव नॉट टू टेक एनी मील्स, यू हैव नॉट टू टेक रेस्ट. अगर एक बार हैबिट बन गई तो बॉडी विल डिनाई एक्टिंग एट दैट टाइम. तो वन ऑफ माई स्टूडेंट प्रांशु adopted this strategy to clear out the CSIR. उस समय वो डेली प्रैक्टिस करता था, जब भी उसको टाइम मिलता था तो 9 to 10 संडे और सैटरडे एग्जैक्टली वो प्रैक्टिस करता था. बाकी डेज में तो काम होते ही थे, तो सैटरडे संडे रिलैक्स होता था. तो उस टाइम पे काफ़ी बच्चे सो जाते हैं कि चलो यार बाद में करेंगे. सोना नहीं है उस टाइम पे, बिल्कुल नहीं सोना है जब एग्ज़ाम का टाइम है. एग्ज़ाम का टाइम आप चेक कर सकते हो, वो फिक्स होता है. तो कैसे करना है, फिर एक बार जैसे क्वेश्चन कर लिया तो देन स्लाइड को फिर से आप रिवाइज में डालो, रिवीजन में, है ना. स्लाइड को आप तुरंत ओपन करो. ये मेरा एडवाइस है टू इम्प्रूव द NTA स्कोर. ठीक है. तो अगर आप ऐसा करते हो, ओके, तो सर्टेनली यू आर गोइंग टू हैव ए वेरी गुड NTA स्कोर, क्योंकि आपको ना परमानेंटली याद हो जाएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी थी. तो यू कैन मार्क दैट, है ना, एंड यू कैन डिस्कस दैट. तो जैसे यहाँ पे एक पाथवे बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, वो नोट कर लेना. वो इट्स नॉट वर्किंग. अच्छा, ओके, इट्स वर्किंग. जस्ट 1 minute. आई एम नॉट टू डिसअपॉइंट योर सेल्फ, है ना. यू हैव टू इनकरेज योर सेल्फ, मोटिवेट योर सेल्फ. और हमेशा
याद रखो कि देयर इज नो फाइनल रिजल्ट्स, ऑलवेज देयर इज ए स्कोप टू इम्प्रूव द रिजल्ट्स। एंड देखो 3 लेवल की लर्निंग होती है, हमेशा रिमेंबर करो, बिफोर द एग्जाम एंड आफ्टर द एग्जाम, राइट। सो व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम्स, है ना, एंड दिस इज द वन टाइम लर्निंग, मतलब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाता है, थोड़ा बहुत पाथवे क्लियर हो जाता है, मतलब 50% फंडामेंटल आर क्लियर। लेकिन एक बार एग्जाम या टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट, ठीक है ना, उसके बाद जब आप पलटते हो पेजेस को, राइट, तो यू हैव नाउ न्यू विजन्स, एक नया विजन आपके पास होता है। नाउ यू कैन क्लियरली सी द थिंग्स कि कहाँ से कनेक्शन हुआ था क्वेश्चन का, कहाँ पे हमने रॉन्ग किया, कहाँ पे छोड़ा, है ना। ऑलवेज हैव पेन एंड पेपर टू नोट डाउन जहाँ पे आपको क्वेश्चन डाउट लग रहा है, राइट। डाउटफुल में तो होना ही नहीं है, राइट, डाउटफुल तो होना ही नहीं है क्वेश्चन को, डाउटफुल है तो लीव दैट। तो आपको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है, बट आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए कि हाउ मच वी कैन टेक द रिस्क। अगर आपको 40 क्वेश्चन है तो यू कैन टेक 1 क्वेश्चन एट अ रिस्क, राइट, नॉट मोर देन 1 और 2, क्योंकि अभी का जो स्कोर है वो बहुत हाई जा रहा है ना। सो नाउ यू कैन सी एपोलाइपोप्रोटीन्स, दिस इज C second, C third, B48, all these we have discussed in the last lecture, right, and they are the carrier, okay, and triglycerols are filled inside, right, this one you can see they are covered by the phospholipid layers, this is the cholesterol, and cholesterol ester and triglycerols are totally filled here, and various type of apolipoproteins are there, you have to note down. Already we have discussed B48, C second, C third, and they are acting as a signal also for the metabolism of chylomicron contents, and the diameter of chylomicrons range from over 100 to 500 nanometer. Okay. So mobilization of triacylglycerol is stored in adipose tissue. Okay, so mobilization we have discussed that there is a, ये पूछा हुआ क्वेश्चन ध्यान रखना, CSIR में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, why glucagon is controlling, because fasting stage में क्या होता है, insulin is down, think in opposite manner. If you are in the fast, why we can ask a question in several mode. Okay, first question may be कि why there is a mobilization of triglycerols stored in adipose tissue, why there is a mobilization, right. So mobilization is because you are fasting. Okay Lakshmi, Afreen, am I audible clearly? Yes, sir. राइट, तो पहला तो ये क्वेश्चन है कि वाई मोबिलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए। नाउ वी आर डिराइविंग द एनर्जी फ्रॉम द ट्राइएसिल ग्लिसरॉल टैग, ओके। तो नाउ व्हिच हार्मोन इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, तो दिस हार्मोन इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द फास्टिंग स्टेज, glucagon. So if glucagon is activated, then which receptor are there, and then what is happening? Then already we have discussed that there is a rise in cyclic AMP concentration due to adenylyl cyclase. ये नाम याद रखना, adenylyl cyclase. This is not a adenylyl cyclase, rather than this is a adenylyl cyclase. Okay, adenylyl cyclase, which is helping in breakdown of ATP to cyclic AMP. Then PK is activated, है ना, kinase. This is a kind of kinase, and perilipin we have discussed. What is the role of perilipin? है ना, perilipin is activated. Phosphorylated, you can say this is here is the phosphorylated hormone sensitive lipase is going to be activated, and then what you can see, triacylglycerol, and then monoacylglycerol, right? MGL we have discussed, if you could remember, right? Then you can see Yes, sir. coming into the blood, and then they become the part of beta oxidation. आज हम यही पढ़ने वाले हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इन द एंड रेस्पिरेटरी चेन, माइटोकॉन्ड्रिया में मतलब हो रहा है. दिस इज ऑकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. Okay,
So fatty acid transporter. So can you tell me once what is happening here, just for a brief revision? Can you repeat what are the Yes, steps? sir. So, glucagon hormone binds to the receptor and activates adenylyl cyclase. Then ATP to cyclic AMP का conversion, and TK is phosphokinase. Okay. So that activation of TK will further phosphorylate perilipin. तो उससे and the hormone sensitive lipase also. With that, there is a conversion of triacylglycerol to diacylglycerol. हाँ. And then to monoacylglycerol. हाँ, इसको क्या हम लोगों ने बोला था? MAG है ना? MAG या MGR बोल रहे हैं, है ना? मोनोएसिड. हाँ, यस, ये मैं याद दिलाना चाहता था कि फाइनली दिस फैटी एसिड इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन. ठीक है ना? आज हम ये पढ़ने वाले थे, इसलिए हमने कहा कि मोबिलाइजेशन जरूर डिस्कस कर दें. ये क्वेश्चन मैंने देखा था CSIR का, और काफ़ी कंपोजिशंस पे भी क्वेश्चन है कि जैसे ये पेरिलिपिन क्या है, फॉस्फोलिपिड क्या है ना, ग्लाइकोलिपिड क्या है. तो नाउ यू कैन सी हियर फैटी एसिड एंट्री इनटू माइटोकॉन्ड्रिया वाया एसिल कार्निटिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एसिल कार्निटिन कार्निटाइन रिसेप्टर मींस गेट कीपर है. यहाँ पे गेट कीपर है. दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ इनसाइड द, एवरीथिंग शुड नॉट गो inside the mitochondrial matrix, right? So there is a gatekeeper called as the carnitine. So before the entry of, you can see before the entry of this fatty acid, right? So there is a check, proper check is there, and these fatty acids should not enter without फॉस्फोराइलेशन. आपको बताया भी था कि जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा. तो ऐसी चीजें होती रहती है, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या है, नाउ सी क्लियरली फ्रॉम द आउटर वॉल, है ना? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज देयर. पहला गेट ये है एंड सेकेंड गेट इज दिस. तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक बड़ा स्पेशल गेट है एंजाइम, विद एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज द CA कार्निटिन एसिल ट्रांसफरेज, CAT1. और यहां पे भी देखोगे दूसरा गेट है CAT2. ओके, CAT1 एंड CAT2, राइट? तो अब क्या होगा यहाँ पे, कैसे एक्टिवेट होंगे? तो दिस कार्निटाइन इज गोइंग टू अटैच, कार्निटाइन इज गोइंग टू अटैच विद द फैटी. आफ्टर फैटी एसिल कार्निटाइन, दिस इज गोइंग टू फॉर्म फैटी एसिल कार्निटाइन. क्या बनेगा? fatty acyl carnitine, right? And then this is catalyzed by the carnitine acyl transferase 1 in the outer gate. Then they get entry inside. यहाँ पे आ रहे हैं अंदर, देखोगे तो ये हो गया carnitine, right? This is the transporter protein, right? This is the transporter protein exactly, and attached to this transporter protein is a CAT2. अब CAT2 का काम क्या होगा कि भाई अब ये गेट कीपर को वापस गेट पे भेज दे. सो कार्निटाइन इज गेट कीपर, है ना, जो कि वेलकम कर रहा है आपके फैटी एसिड को बाय बाइंडिंग टू. भैया आप मैं जैसे रास्ते मेम्ब्रेन स्पेस से जाने के लिए, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट? कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस लिपिड या फैटी एसिड. तो पाथवे ये है कि फर्स्ट दे शुड मेट विद कार्निटाइन मेकिंग द फैटी एसिड कार्निटाइन, and then via intermembrane space, right, they are coming to the gate number 2 है ना? गेट नंबर 2, ये गेट नंबर 1 है, ठीक है? तो गेट नंबर 2. अब गेट नंबर 2 की बात क्या होगा, what will happen exactly? तो यहाँ पे कार्निटाइन रिलीज होगा. अब कार्निटाइन यहाँ से वापस आ रहा है क्योंकि कार्निटाइन को रिसाइकिल करना है कई बार, मतलब फैटी एसिड जितनी बार रिलीज होगा, यानी 1 फैटी एसिड 1 कार्निटाइन. तो अगर जितना भी फैटी एसिड है उतना कार्निटाइन इन्वॉल्व होना है. तो कार्निटाइन इज नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन, रादर देन दे आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, हाँ, रिसाइकिल. तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. तो यहाँ पे हमने 3 चीजें डिस्कस की. इन्वॉल्वमेंट ऑफ CAT1, कैट माने बिल्ली, एंड CAT2. 2 बिल्लियां आ गई यहाँ पे, एक वेलकम करने के लिए आ गया कार्निटाइन,
स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना, कई बार स्पेलिंग में फंसा देते हैं, है ना, जैसे एडिनाइलिल है ना, एडिनिल है तो एडिनाइलिल, तो वो स्पेलिंग याद रखना, कई बार ऐसे फंसा देते हैं। हाँ, तो अब आधा तो आपने कवर कर लिया स्टोरी। So what we can start with the beta oxidation of fatty acid. Beta oxidation of fatty acid means breakdown of a fatty acid to acetyl coenzyme A, and this occurs in the mitochondria obviously, and process is strictly aerobic, and after production acetyl coenzyme is fed directly into the Krebs cycle. Okay, Krebs cycle. So fatty acid metabolism, preparation for oxidation. Before oxidation, fatty acid must be activated and transported to the mitochondria. Activation begin in the cytoplasm. This is important. And then you can see fatty acid, long chain fatty acid. Right, long chain fatty acid coenzyme ligase, LFA ligase इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, LFA ligase. So fatty acid is attaching coenzyme A, right, with the help of this ligase. ये बड़ा इंपॉर्टेंट ligase है, आपने नाम सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी में या बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग में, राइट. सो यू हैव सीन दैट देयर इज ए लाइगेज, है ना, लेकिन ये लाइगेज अलग है, ध्यान देना, ये लाइगेज ऐसा है जो फैटी एसिड से कोएंजाइम को अटैच कर रहा है, एसिल कोएंजाइम को अटैच कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है लॉन्ग चेन LCFA कह सकते हो या LFA कह सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि हाउ यू कैन रिमेंबर. लॉन्ग चेन फैटी एसिड एसिल कोएंजाइम में लाइगेज, तो फैटी एसिल कोएंजाइम में बन गया. फिर आपका ये देखो कार्निटाइन एसिल ट्रांसफरेज 1 है, CAT1, कैट माने बिल्ली, ठीक है. तो अब ये क्या करेगा, एसिल कोएंजाइम में से कोएंजाइम में निकाल लेगा, एसिल रह जाएगा, बिकॉज नाउ कार्निटाइन इज गोइंग टू बी अटैच्ड, तो दिस विल बिकम acyl carnitine. Now acyl carnitine is able to enter inside the mitochondrial matrix. हाँ. Okay, mitochondrial matrix में आएगा, यहाँ पे आएगा, तो then there is a carnitine acyl transferase 2, तो ये रिवर्स हो जाएगा, and then they are going to release acyl coenzyme again. हाँ, और हाँ अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सारे एंजाइम है, तो now they can start this beta oxidation. Okay, so acyl coenzyme डिहाइड्रोजिनेशन. अगर आज की क्लास नहीं होती तो मुझे बड़ा गिल्ट फील होता, बिकॉज मुझे ना नशा होता है मुझे क्लास लेनी है चाहे जो हो जाए, एट एवरी कॉस्ट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट. इफ आई एम नॉट कंप्लीटिंग इट फील्स इनकम्प्लीट, समथिंग इनकम्प्लीट इनसाइड माई माइंड. तो मैं चाह रहा था कि क्लास ब्रेक ना हो, बट चलो एनी हाउ, गॉड इज विद अस है ना. तो नाउ यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. देयर इज ए 4 स्टेज ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. फर्स्ट स्टेज इज डिहाइड्रोजिनेशन, नोट कर लो. सेकेंड स्टेज इज हाइड्रेशन, मीन्स एडिशन ऑफ वाटर. थर्ड स्टेज इज ऑक्सीडेशन. मेरे अंदर कोई कमी होगी तो बताना, राइट. इफ यू वांट एनी इंप्रूवमेंट यू आर मोस्ट वेलकम, है ना. ऑलवेज आई एम रेडी टू इम्प्रूव, क्योंकि आप यंग जनरेशन हो आप लोग, है ना. और मैं कब का हूँ, मैं काफ़ी टाइम मैंने ग्रेजुएशन करी थी 1996 में, ओके, और PhD हमने करी 2008 में. तो नाउ यू कैन सी, है ना, 2001 में हमने MSc बायोटेक्नोलॉजी कर ली थी. तो आपकी यंग जनरेशन है, योर डिमांड इज सेपरेट, तो यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन इफ एनीथिंग यू रिक्वायर, है ना. बिकॉज हाँ, क्योंकि आपको लर्न करना है, मुझे पढ़ाना है, एंड देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनिकेशन गैप. तो मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत ही क्लियर रहे, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर एंड इन ब्रीफ, बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो, है ना, शार्ट में हो, याद करना आसान हो. बट इफ स्टिल यू हैव एनी सजेशन तो यू आर मोस्ट वेलकम. इसको फॉर्मूला से याद कर लो, DHOT, है ना. हमारे साउथ इंडिया में कहते हैं धोती, आई लगा लो अपने से नॉर्थ इंडिया में भी धोती कहते हैं, ठीक है ना. तो धोती हर जगह. तो ये बीटा ऑक्सीडेशन इज नोन बाय द धोती.
धोती अगर नहीं हुई तो काम गड़बड़ होगा। इसके पे डिस्कस करेंगे कि विच डिजीज इज पॉसिबल। वेरियस स्टेज में प्रॉब्लम होती है। जैसे एक स्टेज में प्रॉब्लम होती है कि दिस एंजाइम इज म्यूटेटेड, तो बहुत सारा फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में जमा हो जाता है, वो बीटा ऑक्सीडेशन में एंटर नहीं करता, देयर इज ए सेपरेट डिजीज। तो धोती याद करो, डी फॉर डिहाइड्रोजनेशन मीन्स FAD is removing hydrogen. Okay, dehydrogenation means oxidation. They are building one bond over here. Okay, this is the hydrogen and building one bond, मतलब extra bond. A single bond is converted into the double bond. And hydration means water addition is there. And because of water addition, you can see there is a changes at this place. Especially this is the carbon 2. This is alpha, and you can see this is the beta. So that's why this is called as the beta oxidation, because basically oxidation occurring first stage, that is the oxidation is occurring at place called as the beta. अगर ये यहाँ पे होता तो इसको क्या बोलते हैं? गामा बोलते हैं। तो गामा ऑक्सीडेशन भी होता है, आई विल डिस्कस दैट। बट पहले हम बीटा ऑक्सीडेशन करनी है, तो सारा चेंजेस सेकंड कार्बन पे हो रहा है। मीन्स ऑक्सीडेशन फर्स्ट स्टेज एंड देन हाइड्रेशन, वहीं पे वाटर ऐड हो रहा है, आप देख रहे हो, एंड देन अगेन ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा ये थर्ड वाले पे चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे CO तो एज सच है, राइट। यहाँ पे ये आ गया, ये बिल्ड हो गया, राइट। एवरीथिंग इज सेम। तो बीटा पे ही चेंज हो रहा है। फिर अगेन यू कैन सी देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ COO बॉन्ड। ओके, और तुम्हें एक हैरानी की बात बताऊं, अभी जो मैं नल के सामने था, पूरा पानी मेरे ऊपर ही आ रहा था। मेरे चेहरे पे मेरे सारे कपड़े, 3 कपड़े भीगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश में। तो दैट यू कैन सी इन योर लाइफ कि समटाइम यू गेट ट्रैप्ड इन ए सिचुएशन, है ना। आपको होल्ड करना होता है, अपने बॉडी माइंड पे कमांड करना होता है। बिकॉज माइंड अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, जैसे कहते हैं घबराना मतलब योर माइंड बिकम्स वीक। घबराना नहीं है। जो आप क्लास ले रहे हो, लाइफ क्लास का बेनिफिट क्या है कि वी आर डिस्कसिंग, आई एम योर मेंटर, आई एम योर टीचर। तो माई मेन रोल इज नॉट टू टीच, नॉट ओनली टू टीच दीज थिंग्स, बट ऑल्सो टू मोटिवेट यू सो दैट यू वर्क 200%, है ना। मोटिवेशन इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। आफरीन, एम आई ऑडिबल टू यू? सुनाई दे रहा बेटे? डू यू एग्री विद दिस फैक्ट दैट मोटिवेशन इज द बिगेस्ट थिंग इन योर सक्सेस? और आपको बता दूं लक्ष्मी कि आप शायद जानते नहीं होंगे, आफरीन इज द दैट कैंडिडेट हु क्वालिफाई लास्ट ईयर इन द CSIR फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। ओके, तो शी इज विद अस। आफरीन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या। चलो, अगर वो अनम्यूट कर लेती है तो इट्स गुड, अदरवाइज अभी क्या कर रही है आप लोग? ट्राई कर रही हैं कहीं रिसर्च लैब मिल जाए। अभी सारी लैब बंद हैं, कोरोना वगैरह चल रहा है, तो अभी वो लखनऊ से देहरादून शिफ्ट हुई है। तो और आफरीन को बताऊं कि आफरीन वाज इक्वली टैलेंटेड एज यू, बट मोटिवेशन लेवल मैंने इसको इतना भरा, शी वाज वेरी रेगुलर एंड इन द मॉक टेस्ट शी वाज परफॉर्मिंग वेल। उसकी जबकि मैरिज हो चुकी थी और बहुत सारी प्रॉब्लम थी फैमिली में, बच्चा था, एक छोटा बेबी था, बट उसको मैंने मोटिवेट किया। वो तो छोड़ने जा रही थी, है ना। फिर मैंने मोटिवेट किया, हमने कहा नहीं देखो, गर्ल्स के लिए आजकल बहुत टफ टाइम है, यू हैव टू स्टैंड बाय योर ओन, है ना। क्योंकि मेरी भी एक छोटी बच्ची है, तो मैं उसको आप लोगों की तरह ही देखता हूँ। वो तो छोटी है खैर अभी, है ना, और क्लास सेकंड या थर्ड में है। रोज मैं उसको बोलता हूँ कि तुम सेकंड में या थर्ड में, तो बड़ी गुस्सा करती है कि आप रोज भूल जाते हो। पहले मैं उसको बोलता था LKG में, तो उस समय सेकंड में थी वो, तो बहुत झगड़ा करती थी। तो कहने का मतलब यू हैव टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड, है ना। समाज का जो सिचुएशन है बहुत ही ड्रास्टिकली फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है। तो अभी लोग क्राइम करने लगे, पढ़े लिखे लोग भी क्राइम कर रहे हैं, काफी हद तक जा रहे हैं।
तो सारा जो फैमिली टर्म है ना, तो फैमिली बड़ा डिस्टर्ब होती है। इफ द गर्ल इज डिपेंडेंट ऑन समवन, तो टार्चर का मेन टारगेट ही वही होती है, फैटी एसिड की तरह। फैटी एसिड है तो उसको माइटोकांड्रिया में डाल दो, है ना। तो माइटोकांड्रिया में धोती चलेगा, धोती नहीं चलेगा भाई, पढ़ाई चलेगी, पढ़ाई बोलेगा। और आफरीन को मैंने सोचा है कि आई विल गाइड परफेक्टली कि वो बढ़िया साइंटिस्ट बने, क्योंकि मैंने इंडिया की बेस्ट लैब से काम किया है, बट इंडिया का जो सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग है। यू हैव टू टेक 2 रूट्स सम टाइम, आपको दो अपना डिग्री तैयार रखना होता है कि तो कहीं आप बीएड भी करके आप थोड़ा स्ट्रांग रहो कि अगर गवर्नमेंट जॉब अगर इधर नहीं मिलती है रिसर्च में तो आप इधर जा सकते हो। बट मेरा जैसे एक बचपन से पैशन था कि पता नहीं क्या, मैंने पीएचडी कभी टर्म सुना नहीं था, और जब मैं 5th क्लास में था तब से अपनी मम्मा से कहता था कि मुझे डॉक्टरेट करनी है, पीएचडी करनी है। मुझे नशा था जैसे, राइट। और पीएचडी के लिए मैं बताऊं, लेक्चरशिप की जॉब तो मेरी एमएससी की बाद ही लग गई थी 2002 में ही, बट आई क्विट दैट जॉब, ठीक है ना। पीएचडी के लिए मैंने छोड़ दिया, बट आई सिलेक्टेड रॉन्ग गाइड बड़े अच्छे नहीं मिले मुझे, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं कि कौन अच्छा कौन बुरा, है ना। जो मेरे से अच्छे से बात करता था तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता था। तो 1-2 बार प्रॉब्लम आई, ट्रबल आई, मैंने पीएचडी छोड़ी। फिर मुझे लगा कि एक लॉबी है ना, एक साइंटिफिक वर्ड में लॉबी है कि आप अगर बेस्ट लैब चूज करते हो तो लोग आपको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई गाइड उस इंस्टीट्यूट में आपको फिर सेलेक्ट नहीं करेगा, मतलब आपके ऊपर कैरेक्टरलेस वाला टाइप का दाग लग जाता है है ना। और वैसे कोई हेल्प करता नहीं है कि भाई ये उनके स्टूडेंट है तो हम क्यों हेल्प करें, ये वाला कंपटीशन चलता है, तो यू आर गेटिंग ट्रैप। तो इसलिए मैं मोटिवेट करता हूँ कि ऑलवेज हैव योर ओन फेलोशिप। तो पहले तो कोई तंग नहीं करेगा, पैसे के लिए दिक्कत नहीं आएगी, आपको पॉकेट हमेशा फुल रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 ईयर्स तक सपोर्ट करती है। सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको पीएचडी नहीं मिलती है, सॉरी स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, देन यू कैन ज्वाइन द पीएचडी, है ना, इन द गुड लेबोरेटरी ओनली। अच्छी लेबोरेटरी में ज्वाइन करो, बट 1 साल के बाद गवर्नमेंट एसआरएफ भी देती है बेस्ड ऑन योर पेपर पब्लिकेशन। तो गर्ल्स के लिए तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा है कि अगर आप माइनॉरिटी हो या गर्ल्स हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट देती है कि आप पीएचडी ज्वाइन करो अपने से, ठीक है, विदाउट फेलोशिप। और 1 ईयर के बाद जब आपका पेपर वगैरह अच्छा पब्लिश हो जाता है, जैसे आफरीन का एक पेपर आ रहा है अभी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा मेरे ही साथ, है ना। तो हमने एक ज्वाइंटली प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो एल्गल प्रोडक्शन फॉर बायोफ्यूल। तो ये रिसर्च का भी काम हम लोग करते रहते हैं। तो ये याद रखना, धोती एंड देन फैटी मेटाबॉलिज्म, डिहाइड्रोजन 1 by 1 देख लेते हैं ना। तो 1 by 1 देयर ऑलरेडी यू हैव सीन, दिस इज द अल्फा। अल्फा मैंने यहाँ पे अल्फा बताया था, बट अल्फा नहीं है, ये अल्फा है, राइट, बिकॉज कार्बन इज हियर, फंक्शनल ग्रुप इज हियर, ओके। तो दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा है। तो बीटा तो करेक्ट था हम लोगों का, तो बीटा पे मॉडिफिकेशन हो रही है, राइट, बीटा पे मॉडिफिकेशन हो रही है। दिस इज कार्बन, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, हमेशा मार्क कर लो। कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन इज द बीटा कार्बन। तो ऑक्सीडेशन क्रिएट्स ट्रांस इंटरमीडिएट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। 3 फॉर्म ऑफ एंजाइम, मीडियम फॉर्म प्रॉब्लम इन सीड्स, वो एक डिजीज का नाम है, यूज टू जनरेट एटीपी इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अगर ये FADH2 क्रिएट होता है तो आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक FADH3 गिव्स राइज हाउ मच ATP, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, हाउ मच ATP, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1.5 ATP। हमको लगता है वो सो गई है आफरीन ऑन करके जूम, सो गई है, शी इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, है ना आफरीन। हेलो, चलो, शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो एक तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप इज ट्रांस टू हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम। तो ये भी आपको नाम याद रखना है, क्या बन रहा है एंड विच एंजाइम इज इन्वॉल्व। सेकेंड स्टेप में हाइड्रेटेज, इनोइल कोएंजाइम हाइड्रेटेज मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, ओके, एडिशन ऑफ वाटर। तो इनोइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट इनटू द हाइड्रोक्सिल एसिल कोएंजाइम ए। Beta oxidation reaction 2, similar to fumarate reaction of citric acid cycle, and preparation for next oxidation step.
What is metabolism? Beta oxidation 3, right? And there is a dehydrogenase again. Hydroxyl acyl coenzyme है dehydrogenase, 3 keto acyl coenzyme है ना, L3 hydroxyl acyl coenzyme A. Okay बेटा, similar to malate dehydrogenase reaction of citric acid cycle used to generate ATP. NADH कितना देता है? 2.5 ATP. नोट कर लो, नोट कर लिया. This is 2.5 ATP, FADH2 1.5 ATP. तो अगर आप एक NADH एक FADH टोटल ATP की बात करोगे तो हाउ मच ATP is going to derive? टोटल इज द 4 ATP. ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एक साइकिल में एक NADH और एक FADH आपको प्रोड्यूस हो रहा है, तो दे आर गोइंग टू गिव राइज टू 4 ATP, इक्विवेलेंट टू 4 ATP. And beta oxidation reaction 4, thiolase is there, right? Thiolase means shortening by 2 carbon. यही आपको माइनस करना होता है. जैसे वो पूछते हैं कि जैसे 110 है सपोज कार्बन फैटी एसिड का, तो कितना साइकिल चलेगी, तो 2 से डिवाइड कर देना होता है. ठीक है, तो 2 55 हो गया ना, तो देयर विल बी 55 साइकिल. इस साइकिल में 4 ATP, तो मल्टीप्लाई बाई 4, 220 ATP. क्योंकि एवरी टाइम दे आर रिड्यूस्ड बाय द 2 कार्बन्स. तो ये ध्यान में रखना. तो अब कैलकुलेशन पार्ट हम जब देखेंगे तब ये आपको काम आएगा, है ना. हाँ, यस. In summary, each round of oxidation creates 1 FADH2, 1 NADH, right? 1 acetyl coenzyme. What is the product? ये नोट कर लो. Product is 1 FADH2, 1 NADH, and 1 acetyl coenzyme A. And fatty acid gets shortened by 2 carbon. Fatty acid gets shortened by 2 carbon. हाँ, each acetyl coenzyme releases in matrix mitochondria where it is readily oxidized in the citric acid cycle. So fatty acid oxidation, beta oxidation, enzyme in mitochondria and peroxisome generate more ATP per carbon than sugars proceed 2 carbon at a time. तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. All reaction occur between alpha and beta. Right? तो कहाँ पे हो सकता है beta oxidation? Beta oxidation occurs in various kind of tissues like liver, kidney and heart. So fatty acid oxidation does not occur in the ब्रेन. तो याद रखना आपको, ब्रेन में नहीं होता है. एंड देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन आल्सो, जो कि हमने पढ़ा अभी. बीटा ऑक्सीडेशन, देन अल्फा, देन ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ट्राइएसिलग्लिसरॉल, फैट, फैटी एसिड, डाइट, एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड. ये एसिटाइल कोएंजाइम में अंडरगोज बीटा ऑक्सीडेशन. अभी साइकिल चलती रहती है पूरा. ठीक है ना. So beta oxidation of fatty acid involve 3 stages already discussed. Activation of fatty acid in cytosol. बार-बार इसलिए बताते हैं कि दिमाग पे चढ़ जाए ना. तो if anything miss, then we can add on. Okay, because हर चीज दिमाग में चढ़ती नहीं है. तो जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार रिवाइज करते हैं, तो it's goes better. Transport of activated. What is the activated fatty acid? This is the carnitine. Carnitine attached. So this is called the carnitine shuttle, because carnitine getting back. Beta oxidation proper in the mitochondrial matrix. Okay. Activation of fatty acid proceed by thiokinase. धोती याद ही होगा, फुल फॉर्म DHOT. T मतलब थायोकाइनेज या थायोलेज, है ना. थायो रिएक्शन इज देयर. O for oxidation, है ना. डिहाइड्रोजनेशन, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन. हाँ. लेकिन डिहाइड्रोजनेशन से याद करना है. H इज द हाइड्रेटेज या हाइड्रेशन. तो आपको धोती याद रखना, क्योंकि इंडिया में हम पढ़ते हैं तो इसलिए आई लगा लो. फैटी एसिड कोएंजाइम एटीपी, फैटी एसिड ऑलरेडी डिस्कस. थायोकाइनेज. Transport of fatty acyl coenzyme from cytosol mitochondria. There is a form some long chain acyl coenzyme already discussed.
and mechanism is called the carnitine shuttle. Carnitine shuttle occur in the mitochondrial matrix. Carnitine के sometime they can ask the structure, तो आप याद रखो C3 कार्बन है 1 2 3 और इसका स्पेशल फीचर है यू कैन आइडेंटिफाई बाय CH3 3 at N terminal. So there is a C terminal, there is a N terminal, but N terminal have additional CH3 thrice. This is called as the carnitine. तो ये दे सकते हैं आपको पहचानने के लिए कि आइडेंटिफाई विच वन इज द कार्निटाइन, क्योंकि क्वेश्चन जब फ्रेम अप होता है तो पता नहीं चलता है। और इस बार के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन कैसा था? कैन यू गिव सम फीडबैक? हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस? थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे पहले से। अच्छा, मिक्स था। मैंने 2 टेस्ट दिया था, एक तो बहुत ही सिंपल था। हाँ वो है ना? हाँ वो एक इजी था। हाँ है ना, जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया था। सेकंड वाला थोड़ा सा लेवल 2 था, तो मैंने जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस भी तो वो रीड करके यस पेशेंटली एनालाइज करने में वो मुझे टाइम लगा बनाने में, वो काफी सिलेक्ट करने में क्वेश्चन मुझे टाइम लगा। एंड उसका टारगेट यही था कि अगर आपने उसमें 78 भी अचीव किया है तो दैट इज गुड इनफ, क्योंकि आपने रिकॉल किया, सारी एनर्जी लगाई, क्योंकि मेंटली फोकस करना होता है। एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन इज नथिंग, वही आप रिकॉल रीड करना पड़ता है। हाँ, बच्चे ना पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि लंबा होगा तो टफ होगा और छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है, एज्यूम कुछ भी नहीं करना है। वॉट एवर यू फेस, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बच्चों को सबको ये ट्रेनिंग देता हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, गर्ल्स हो, कि आप कुछ भी एज्यूम मत करो लाइफ में, ना गुड ना बैड, एंड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, बी रेडी फॉर स्ट्रांगली एवरीथिंग। सबके लिए अच्छे से रेडी रहो, ओके अच्छे से रेडी रहो, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आप रेडी रहो एंड देन सी कि व्हाट यू कैन डू, ठीक है ना। The transport of acyl coenzyme into mitochondria, rate limiting step, acyl group from acyl coenzyme already discussed, acyl carnitine shuttle, translocase enzyme का बड़ा important है ना। और ट्रांसपोर्टर का भी हमने डिस्कस नहीं किया, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ये आपको बताई दिया, कार्निटाइन एसिल ट्रांसफरेज 1, कार्निटाइन एसिल ट्रांसफरेज 2, कैट 1 कैट 2, ऑलरेडी डिस्कस दिस। स्टेप भी आपको क्लियर हो गया। स्टेप 1 में एंजाइम कौन सा है? FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज, सेकेंड वन हाइड्रेटेज, थर्ड NAD लिंक, दैट्स व्हाई बोथ आर प्रोड्यूस्ड। FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज, हाँ NAD लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज, इजी है याद करना, ठीक है ना। सेकेंड में हाइड्रेटेज, थर्ड में थायोलेज, थायोलेज। तो हमेशा याद रखना कि जैसे पूछा जाएगा तो दिस विल बी पूछ सकते हैं कि विच इज द मेन functional group from where counting starts. Counting not starts with year. This is 0. This marks 0. This is 1 and this is 2. So that's why this is beta. Beta. और अब ये जैसे 16 कार्बन का है, राइट? तो 16 कार्बन डिवाइडेड बाई 2 कितना स्टेप चलेगा? 8. 8 स्टेप में कितने ATP? 32. 32, ठीक है ना। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करने में अब आपको इजी रहेगा। वो आते हैं हम उसी पे, कैलकुलेशन पे। चलो पामिटिक एसिड कर लेते हैं, जिसमें 16 कार्बन है, राइट। तो आपको एग्जैक्टली 7 साइकिल चलेगी, ये नोट कर लो। 16C में 2 का डिवाइड करोगे तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, बट एक्चुअल स्टेप विल बी 7 स्टेप्स। हाँ, ठीक है। वो लास्ट स्टेप में 2 एसिटाइल कोए बनेंगे ना, तो 7th वाले में 2 बन जाएंगे। 7th और 8th एसिटाइल कोए 7th स्टेप के बाद मिल जाएगा। हाँ, अब इन्होंने थोड़ा ATP का गलत एजम्पशन लिया है, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से लिया है, तो न्यू कन्वेंशन के हिसाब से आपको 4 ही मिल रहा है टोटल। हाँ, पुराने कन्वेंशन से 5 मिल रहा है, तो 7 स्टेप इंटू 4 आपको हो गए 28 ATP। ठीक है। अब जो एस्टल कोएंजाइम है उसका अलग से ATP आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो एक एस्टल कोएंजाइम में TCA साइकिल के थ्रू यही कैलकुलेशन पूछता है CSR में एक्चुअल में, जो कि बच्चे नहीं कर पाते। 1 एस्टल कोएंजाइम में
इन द TCA साइकिल गिव राइज 12 ATP। तो कितना एस्टल कोएंजाइम में बना? 8। तो 8 into 12 दिस बिकम 96 ATP। तो 96 ATP एंड कितने स्टेप थे? 28 थे ना, 28 ATP वहां से निकला था, राइट। 7 into 4 Yes. तो कितना हो गया? 124 ATP। क्लियर? तो ये आपका अचीवमेंट हुआ कि 16 कार्बन होगा तो 7 स्टेप, हाँ 7 स्टेप, 7 into 4 सीधा सीधा 28 ATP और 8 एस्टल कोएंजाइम A, क्योंकि 2 से आप डिवाइड कर दोगे सीधा सीधा। तो 8 स्टाइल कोएंजाइम A, तो 8 into 12 ये हो गया 96। तो 96 प्लस 124। 28 आ गया 124 ATP। क्लियर बेटे? यस सर। अब कई बातें रिपीट होंगी। अब जैसे कई जगह कैट को CPT1 भी कह रहे हैं, राइट, CPT1। तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि अगर पाल्मिटोइल लिया है आपने, मतलब जो भी फैटी एसिड का नाम है उस फैटी एसिड को इन्होंने नाम में ऐड कर दिया है, जैसे कार्निटाइन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज 1, राइट। वो पामेटिक एसिड के लिए। हाँ, इसलिए CPT1 CPT2 से कंफ्यूज नहीं होना है। एंड देयर इज ए कार्निटाइन को ट्रांसपोर्टर। को ट्रांसपोर्टर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज रिसाइकिल बैग भी हो रहा है, एक अंदर जाएगा तो एक रिसाइकिल बैग होगा, है ना? नहीं समझे? जैसे ऐसे अंदर गया तो एक वापस भी आ रहा है ना कार्निटाइन। ये तो एसिल कार्निटाइन जा रहा था इनसाइड, एंड वन कार्निटाइन इज कमिंग बोगी जैसे, हाँ, एक ट्रैक पे आगे जा रहा है। हाँ, तो अगर ये वापस नहीं आएगा तो ये जाएगा भी नहीं। ये शर्त है इनकी। दैट इज कॉल्ड एज द को ट्रांसपोर्टर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आपने पकड़ा कि दिस इज इन द को ट्रांसपोर्ट। यूनिट ट्रांसपोर्ट नहीं है, को ट्रांसपोर्ट है। ओके, को ट्रांसपोर्ट है। एंड दे कैन आस्क यू द व्हाट इज द नेचर ऑफ CPT1 एंड CPT2। CPT1 नोट कर लो, दीज आर आइसोजाइम। आइसोजाइम मतलब सिमिलर नेचर है इनका, सिमिलर नेचर सिमिलर फंक्शन। नेम इज, दो नाम इसलिए हैं क्योंकि लोकेशन अलग अलग है, बस फंक्शन इज द सेम। ओके जी, यस सर। तो अब इसकी जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीजें कवर हो गई। हाँ, हार्मोन्स कौन सा है? इपिनेफ्राइन एंड ग्लूकागॉन, दैट्स कंट्रोल द मेन, है ना, फंक्शन। तो ग्लूकागॉन दे आर एक्टिवेटिंग द प्रोटीन काइनेज ए, हाई साइक्लिक एमपी फॉर्मेशन इज देयर। ये ऑलरेडी मैंने उसमें बता दिया था, राइट। Apolipoprotein lipid binding protein in the blood that are responsible for transport of triacylglycerol, phospholipids, cholesterol। ये आप इंपॉर्टेंट नोट कर लो, क्या क्या ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है? एपोलाइपोप्रोटीन, सो ट्राइसिलग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड कोलेस्टेरिल एस्टर। कोलेस्ट्रॉल एस्टर, ठीक है बेटा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, टैग, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ओके, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस देयर इज अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन फॉर्मेशन इज देयर, VLDL, VHDL, ठीक है ना, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। कीटोन बॉडीज ऑलरेडी डिस्कस्ड। अच्छा, वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मिनट। क्वेश्चन वाज हियर बट ड्यू टू चेंज इन द इंक द क्वेश्चन हाइड। Oh, I have to change the color of the ink from here.
sometime is little bit change in the color mix. Fats that have at least one double bond between carbon atom are called as unsaturated. Already ये डिस्कस हो चुका है, तो खैर कोई इशू नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द थिंग, हाँ कार्निटाइन के बारे में क्या सोर्स है, फ्रॉम वेयर यू अचीव द कार्निटाइन. सो डिनेमो सिंथेसिस ऑकर्स फ्रॉम द लाइसिन एंड मेथिओनिन, राइट, एंड डेफिशिएंसी रिजल्ट्स फ्रॉम डाइटरी इनसफिशिएंसी, इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी, हीमोडायलिसिस, राइट. तो ये नोट कर सकते हो. कैन ऑल्सो ऑकर फ्रॉम कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफेरेज, CPT1 CP2 डिसफंक्शन. डिसफंक्शन अगर होगा देन प्रॉब्लम होगी, राइट. मेन सोर्स इज डाइट. कार्निटाइन यू आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम डाइट. de novo सिंथेसिस फ्रॉम लाइसिन एंड मेथिओनिन. ओके, तो अगर ये डिसफंक्शन हो जाए तब भी कार्निटाइन डिपॉजिट हो सकता है बॉडी में. दैट इज द important. Treatment is oral supplementation with carnitine. Diabetic drug sulfonyl urease reduce circulating blood sugar by inhibiting CPT1 CPT2. ठीक है. अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आज मैं पढ़ रहा था, इसमें पता नहीं आया कि नहीं आया. ये तो हो गया कि क्वेश्चन ये था कि सपोज अब आपने फास्टिंग एंड कर दी. फास्टिंग में आपका क्या चला, देयर इज अ 2 स्टेज. फास्टिंग आपने स्टार्ट करी, देन आपका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन चला है बेटा, एंड देन अगर फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एनर्जी बननी स्टार्ट हो गई, फिर आपने फास्टिंग ब्रेक कर दी, तो ये स्टॉप कैसे होगी. व्हाट इज द इनहिबिटर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. What is the inhibitor? Insulin. No, melonyl. ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि मेलोनिल इज द बेसिक इनहिबिटर ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. हाँ, मेलोनिल रिड्यूस कर देता है कार्निटाइन के अटैचमेंट को, है ना. कार्निटाइन के अटैचमेंट को रिड्यूस कर देता है. मेलोनिल इज द बेसिक इनहिबिटर ऑफ दिस. तो एक तरह बीटा ऑक्सीडेशन दो तरह का क्वेश्चन आप आ सकता है. एक तो स्ट्रेट वे कि भाई चलो 16 कार्बन है, 18 कार्बन है, 20 कार्बन है, नाउ टेल मी, है ना. बट अनदर क्वेश्चन दे कैन आस्क कि इफ दे आर हैविंग द अनइक्वल चेन्स, जैसे 16 की बजाय 17 कर दें, 18 की बजाय 9 ऑड नंबर, तो ये इवन नंबर है. इवन नंबर के लिए तो आपको सीधा कैलकुलेशन ने बता दिया, तो विल सी शॉर्टली. 16 कार्बन के लिए सारा कैलकुलेशन मैंने बता दिया, लेकिन कई जगहों पे देखोगे तो कैलकुलेशन इज टोटली डिफरेंट. जैसे यहाँ पे 16 कार्बन के हिसाब से हमारा क्या कैलकुलेशन था, हाउ मच एटीपी वी आर गेटिंग, 96 एटीपी तो करेक्ट है, राइट, क्योंकि 8 स्टेप है. अब ये 14 एटीपी कहाँ से आया, 7 FADH2 और 7 NADH. ठीक है, तो इन्होंने सीधे 2 और 3 का फार्मूला लगाया ओल्ड बुक्स में. बट 7 से हम सीधा क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म काम. तो वी आर गेटिंग 28. तो वो 28 को, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, 131 मिलेगा ऑप्शन में. नॉट टू कंफ्यूज, योर ऑप्शन इज करेक्ट, 124. तो अभी सारे आंसर्स में यही कंसीडर करना है ना, 1.5 और 2.5. 4, हाँ 4, 1.5 2.5. इवन एटीपी सिंथेसिस वहां भी पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां भी यही कंसीडर करना है, है ना. ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड नंबर फैटी एसिड, natural occurring fatty acid are even numbered. However, some plant and marine animals have odd number fatty acid. Catabolism leads through 3 carbon propenyl coenzyme which is carboxylated in presence of biotin. तो यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप आपको नोट करना है, odd number fatty acid. Naturally occurring fatty acids are even numbered. However, some plant and marine animals have odd number. वो पुफा वगैरह हमने डिस्कस किया भी था. तो catabolism leads to 3 carbon propenyl coenzyme A, which is carboxylated in presence of biotin. The succinyl coenzyme A then enters the Krebs cycle. Okay, तो यहाँ पे एक चेंजेस ये है. Then what is the ultimate results?
तो ये डाइजेशन वाला फिर से आ गया। तो वो पहले इवन नंबर में जो होता है वो एसिटाइल कोए क्रेब्स साइकिल में जाता हाँ है और इसमें सक्सेनल कोए जाता है। हाँ, सक्सेनल कोइन जाता हाँ, है, राइट। वो मैंने रखा हुआ कहीं, कहाँ चला गया, रुक से जाओ। बायोकेमिस्ट्री का ब्यूटी है वो, कि हाँ जैसे भी बने सब अक्यूमुलेट अच्छे से हो ही जाता है। हाँ, राइट। ये तो डिस्कस हो गया। ये तो आपको फॉर्मूला है ना, C/2, जितना कार्बन है उसे 2 को डिवाइड करना है, एंड बीटा ऑक्सीडेशन एक स्टेप कम कर देना है। जैसे यहाँ पे 8 हाँ। स्टेप था 16 के लिए, एंड 7 साइकिल्स 7 बने और साइकिल, 8 हाँ एसिटाइल कोए। हाँ 7 साइकिल, इसीलिए 14 का 7 और 6 हो जाएगा। यहाँ 12 के लिए 6 और ये 1 लेस हो गया 5, ठीक है। 18 के लिए 9 और यहाँ के लिए 8 हो गया। ये फॉर्मूला चलेगा। एक्टिवेशन ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड 2 ATP 1 साइकिल ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इन्होंने थोड़ा ये गलत दिया है, ये कर लो 1 NADH 22.5, दिस इज 1. सब जगह यही मिल रहा है, लेकिन ये मैंने देखा करेक्शन है 1.5 और 2.5 का। खास करके आप विकीपीडिया देखोगे तो वहाँ पे भी ये करेक्शन है ना। और मैंने लेटेस्ट जो बुक्स पढ़ी हैं, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं, हाँ, उसमें भी 1.5 हाँ। 2.5 है ना। ये गलत कैलकुलेशन है। ब्रांच चेन फैटी एसिड का कैसे होगा? फॉर एग्जांपल फाइटेनिक एसिड फ्रॉम प्लांट्स, तो हाउ दे आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज, तो देयर इज ए अल्फा ऑक्सीडेशन। ब्रांच चेन का बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हमेशा एकदम शॉर्टकट याद कर लो। ब्रांच चेन ऑलवेज गोइंग टू हैव अल्फा oxidation. Branch chain going to have alpha oxidation rather than beta oxidation. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ब्रांच चेन कैसे जाएगा, फाइटेनिक एसिड कैसे जाएगा, राइट। तो दे कैन गिव यू वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दैट हाउ दे आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज। Omega oxidation, minor pathway or fatty acid metabolism take place in endoplasmic reticulum, become important when there is dysfunction of beta oxidation pathway or the carnitine transport system. Ketone bodies formation, ketogenesis, fate of acetyl coenzyme is either the entry into Krebs cycle or the ketogenic pathway. This is important. या तो Krebs cycle में जाएगा या ketogenic pathway में. And ketogenesis lead to production of ketone bodies in the form of acetone, hydroxybutyrate and acetoacetate. In diabetes and starvation where beta oxidation of fatty acid increase, leading to increased acetyl coenzyme. Because of increased gluconeogenesis, there is a depletion of Krebs cycle intermediates leading to shunting of acetyl coenzyme into ketogenesis, which primarily occurs in mitochondria of the liver. Okay. तो जब भी Krebs cycle intermediates की डिप्लीशन होगी, इन दैट केस एसिटाइल कोएंजाइम में shunted into the ketogenesis pathway. और कहाँ पे होता है कीटोजेनेसिस? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द liver. This was the important discussion here. What is the lipogenesis? Take place in the cytosol of liver, kidney, brain, everywhere. मतलब lung, mammary gland, adipose tissue. राइट, दैट इज कॉल्ड द लाइपोजेनेसिस। तभी तो, नहीं तो अगर लाइपोजेनेसिस सारा ऑर्गेन में ना हो तो कहीं पतला नजर आए, कहीं मोटा नजर आए है ना। तो लाइपोजेनेसिस इज एवरीवेयर। मेन सोर्स ऑफ सबस्ट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम इज फ्रॉम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, स्पेशली इन द फेड स्टेट। ओके, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज सीसी फॉर्मेशन बिटवीन मेलानोइल कोएंजाइम एंड एसिटाइल कोएंजाइम। मेलानोइल कोएंजाइम जो इनहिबिटर मैं कह रहा था वो ऑक्सीडेशन को रोक देगा, और फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम से मिल के एंड दे आर अंडरगोइंग द लाइपोजेनेसिस। तो याद रखना, यही मेलानोइल कोएंजाइम है जो कि इनहिबिटर का भी काम करता है, बीटा ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगा, राइट। एलोंगेशन में पालमिटेट नीड टू बी एक्टिवेटेड बाय एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। तो ये है लाइपोजेनेसिस का इनिशिएशन बाय मेलानिल। ये देखो इनिशिएशन है मेलानिल एंड एसिटाइल कोएंजाइम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, initiation. Second step is elongation. Third step is desaturation.
Desaturation carried out in the smooth endoplasmic reticulum SCR. कई बार जब आप ना काफी पढ़ लेते हो ना तो आपका दिमाग एकदम पागल हो जाता है। तो आपने देखा कि काफी मतलब मटेरियल हमने इकट्ठा किया है ना, तो देन वी आर फाइनलाइजिंग। काफी फाइनल करने में शाम तक काफी टाइम लग जाता है। तो वंस यू आर गोइंग थ्रू ऑल द थिंग्स एवरीथिंग, देन यू हैव टू प्रेजेंट इट इन वेरी क्रूड वे, एक्सट्रैक्ट वे। तो डीसैचुरेट एंजाइम ये पूछा, डीसैचुरेशन कहाँ पे होता है, ये पूछा वैसे सर में, डीसैचुरेज एंजाइम कहाँ पे होता है ना। डीसैचुरेज एंजाइम यूनिक है इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज यूनिक, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Carried out in smooth endoplasmic reticulum SCR, catalyzed by mixed oxidase at CC in cis position. Mammals are unable to have C double bond C position at C9 C12 fatty acid needed in the diet, linoleic acid and linolenic acid. Okay, esterification with glycerol and other fatty acid to form TAG with the cholesterol to form cholesterol ester. तो आपको समझ में आ गया कि ये डीसैचुरेशन का क्या रोल है, डीसैचुरेशन एंजाइम का क्या रोल है। एडिंग सी डबल बॉन्ड सी इन द सिस पोजीशन और स्पेशली C9 C12 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ऐड करते हैं, राइट। दे आर एडिंग डबल बॉन्ड एट C9 एंड C12 पोजीशन। ठीक है जी, यस सर। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, है ना। तो सारा पढ़ लिया हम लोग ना, ओमेगा फैटी, ओमेगा अल्फा सारा ही पढ़ लिया। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस अगर हो तो प्रैक्टिस करना। कल हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वी कैन चेक। रुक जाओ देख लेता हूँ सिलेबस एक बार। सिलेबस, यू शुड ऑलवेज बी इन टच विद द सिलेबस, because this is the syllabus that is going to guide you, है ना। सिलेबस हमेशा गाइड करेगा। विटामिन रह गया है जो मुझे याद है, ठीक है। रुक जा, हाँ यही तो है माय डॉक्यूमेंट, यस। इसमें CSIR का कहाँ चला गया, CSIR कहाँ चला गया, अटेंडेंस, वेबिनार, हाँ ये आ गया। इसी में हमने डाला है सिलेबस, ये है सिलेबस। ऑलवेज यू हैव टू चेक आउट द सिलेबस। अभी थोड़ा स्लो चल रहा है बिकॉज बायोकेमिस्ट्री एंड हो जाएगा, फिर फास्ट चलेगा आपका। तो हम लोग लास्ट स्टेप में है विटामिन, है ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन्स। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड 3 डेज ये चलेगा, जैसे हम लोग पहले चलते थे। लास्ट बैच में हमने ऐसे किया था कि 3 डेज आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चलेगा एंड स्टार्टिंग विद द 6। नेक्स्ट 3 डेज आपका, नेक्स्ट 2 डेज आपका चलेगा ये प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो हमने इसलिए जस्टिफाई करने के लिए कि ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में देयर विल बी ग्रेट रश, तो 3 डेज वो 3 डेज ये चलते हैं। तो इधर भी प्रोसीड करता रहता है, जैसे 6 7 है ना। 7th वाला तो पूरा नहीं पढ़ाते हैं, 7th पूरा लेफ्ट कर देते हैं बिकॉज भाई बहुत सारी जगह भी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कशन हो जाती हैं इसकी। तो ये जूलॉजी का भी पार्ट है, दैट इज नॉट माई पार्ट, तो मैं छोड़ देता हूँ। फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी आ जाता हूँ, है ना। मैंने आपको समझ लो अक्टूबर में आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी चलेगा, फिर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। तो आपको एक थोड़ा सा लगने लगता है रिलैक्स मोड में कि इधर आपका 3rd और 4th यूनिट चल रहा है और उधर आपका 6 7 8 यूनिट चल रहा है, राइट, 9th एंड देन फिर इकोलॉजी। तो जैसे एग्जामिनेशन जैसे जैसे क्लोज आता है तो यू आर हियर इटसेल्फ, है ना। मेथड्स इन बायोलॉजी बहुत लंबा है, तो इसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए टाइम मिल जाता है कि वी कैन जस्टिफाई दिस टॉपिक वेल। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक छूटता भी नहीं है। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला पार्ट में
पढ़ाई दूं, क्योंकि मैं इस समय इस पे किताब भी लिख रहा हूँ, बुक लिख रहा सर आपका हूँ। स्क्रीन शेयर पीपीटी ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ओह राइट राइट, एक सेकेंड। आज सब कुछ गड़बड़ किया, राइट। क्या नया ऐड किया कि सपोज अगर किसी ने ग्लिसरॉल फीड किया तो इन्होंने क्या, है ना, एल्ब्यूमिन के थ्रू वो जा रहा है, तो एक नई चीज मिल गई आपको। और उन्होंने कहा जैसे ब्रेन में नहीं जाता है ना, कोई भी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन ब्रेन में नहीं होता है, तो आपको जैसे इन्होंने आरबीसी भी एक मेंशन किया है यहाँ पे, तो आपको नई चीजें मतलब आप कहाँ से कलेक्शन करनी है, यू हैव टू गो थ्रू, एक इंटरेस्ट में आप गूगल में जा सकते हो, ठीक है ना, कि कैसे ये चीजें हैं, क्या नया रिपोर्टेड है। तो एक जल्दी जल्दी में भी अगर आप जाते हो तो यू विल फाइंड मेनी न्यू थिंग्स। जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से, मतलब क्यों नहीं जाता, बिकॉज कीटोन या कोई भी बीटा ऑक्सीडेशन वाले प्रोडक्ट नहीं जाते हैं, बिकॉज देयर इज ए ब्लड ब्रेन बैरियर। तो एक आंसर आपको मिल गया, है ना। कीटो एसिडोसिस क्यों होता है, तो ये डायबिटीज की पर्सन में होती है, राइट। टाइप 1 डायबिटीज की पर्सन में कीटो एसिडोसिस होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कीटोन बॉडीज बनना, है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज। फिर नाउ यू कैन सी वेरियस न्यू थिंग्स गिवन। फैटी एसिड एनर्जी सोर्स तो कितना होता है तो आपको पता ही है ना। एक ही सीसर में क्वेश्चन भी था कि 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन एंड 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड कितना एनर्जी मिलेगी, है ना। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन कैन बाइंड 2 ग्राम ऑफ वाटर विच ट्रांसलेट टू 4 किलो कैलोरी पर 3 ग्राम, है ना। यानी फैटी एसिड कैन होल्ड 6 टाइम मोर एनर्जी। तो ये कैसे 6 टाइम आया, आपको इक्विवेलेंट एनर्जी आपको देखना पड़ेगा, हाउ मच एनर्जी they are giving। तो दिस इज 9 किलो कैलोरी अप्रोक्सीमेट, है ना, 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ऑफ फैटी एसिड 9 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, तो 5 का डिफरेंस है, 5 किलो कैलोरी का। तो इस तरह से थोड़ा सा पन्ना पलटने से भी, राइट, बी रिसर्चर। रिसर्च वाले यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेपर को, एक टॉपिक है तो कई जगह से पढ़ते हैं उस चीज को कि कुछ नया मिल जाए। अभी एक बार बेस फाउंडेशन बन गया है, तो फाउंडेशन के ऊपर क्या चीजें हैं, क्योंकि वो कहाँ तक जाएंगे, है ना। यही सब नई नई चीजें ढूंढेंगे, राइट, कि क्या है भाई, कितना ग्राम हो गया, कितना टाइम हो गया, फंसाने के लिए। अब भाई एक बार चांस मिलना है, सीएसआर निकाल के खत्म करना है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया लाइपोजेनेसिस कैसे बनता है। अब यहाँ पे Cyp2E1 का डिस्कशन इन्होंने किया हुआ, एक नई चीज का। ये क्या है भाई, राइट, Cyp2। तो ये भी नोट कर लो आप, कल थोड़ा सा देख लेना। मैंने वैसे Cyp4 का डिस्कशन किया ही था, है ना, Cyp450 ये भी आपके सामने डिस्कस किया था। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट वन, ओके। ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है एंड यू हैव टू डिस्कवर की व्हाट इज एग्जैक्ट रोल ऑफ Cyp2E1। ठीक है बेटा, नोट कर लिया, आपको यहाँ से मिल भी जाएगा, है ना। लाइपोलाइसिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। फिर ये वाला पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आपको जानना चाहिए सिग्नलिंग का पार्ट, वेरियस। इस सिग्नलिंग के पार्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डाग और IP3 का प्रिकर्सर क्या है। तो यहाँ पे लिखा है फास्फोलिपिड। एक लाइन आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है कि फास्फोलिपिड गिव राइज टू डाग एंड IP3, दिस इज द प्रिकर्सर फास्फोलिपिड, ओके, फास्फोलिपिड, ओके। तो अभी फास्फोलिपिड किस वे में जाता है ये भी क्वेश्चन पूछा था। डॉग एंड IP3 तो बनता है, बट IP3 एग्जैक्टली डॉग एंड IP3 बनने के पहले क्या बनता है, तो दैट इज इंटरमीडिएट कॉल्ड एज द PIP2। PIP2 और PIP2 कब बनेगा, व्हेन फास्फोलाइपेज एक्शन इज देयर। फास्फोलाइपेज एक्शन इज देयर, दैट इज कन्वर्टिंग द फास्फोलिपिड इनटू PIP2, ठीक है।
फास्फोलाइपेज E2 का भी फंक्शन सेम है ना, फास्फोलाइपेज E2 का फंक्शन सेम है। क्या करेगा, फास्फोलिपिड को कन्वर्ट करेगा डॉग में। फास्फोलाइपेज E2 कन्वर्ट कर देगा डॉग में फास्फोलिपिड को, है जी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया अचानक कि लेटेस्ट है कि क्या क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या नई चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार एज ए टीचर हम बड़ा फोकस कर लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं एक किसी टॉपिक में, तो हम ऐसे स्टूडेंट खुराफात करते ही थे कि कुछ नए टॉपिक ढूंढो, कुछ नई पब्लिकेशन ढूंढो, कुछ लेटेस्ट आर्टिकल ढूंढो। आखिर जाता क्या है ना, नुकसान क्या है, कुछ नया मिलेगा। डाइटरी सोर्स ऑफ फैटी एसिड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें काफ़ी काम कर लिया है, कोई इशू ही नहीं है। तो जैसे एक है एडिपोज टिश्यू मेमोरी, हाँ LDL वगैरह सारा डिस्कस कर लिया। फैटी एसिड सिंथेसिस पे भी काफ़ी कुछ, तो आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि यार काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। अब एक एंजाइम नया इन्होंने नाम दिया है फासी1, ठीक है, फासी1, इसको फासी1 फासी2 को बोल रहे हैं फैटी एसिड सिंथेटेज 1 एंड 2, है ना, फैटी एसिड सिंथेटेज 1 एंड 2। वो फैटी एसिड सिंथेसिस नाम ही है, वही तो सिंथेसिस में काम आ रहा है ना। ग्लाइकोलिटिक एंड प्रोडक्ट आर यूज्ड, एक्चुअली मैं डिजीज में ढूंढ रहा था, डिसऑर्डर, हाँ डिसऑर्डर मिल गया, डिसऑर्डर ऑफ फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इन टर्म्स ऑफ हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स और अदर टाइप ऑफ हाइपर लिपिडेमिया। वही मैं बोल रहा था ना कि CPT1 CP2 जब इफेक्ट हो जाते हैं तो लिपिड बहुत ज़्यादा बॉडी में रुकने लगता है, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग अंडर द, है ना। तो पॉलर आपने सारा कुछ रखा है, यू हैव टू कोरिलेट बाय सर्चिंग द न्यू थिंग्स, है ना। तो इनबॉर्न एरर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म क्या है भाई, डिसऑर्डर में भी डिस्क्राइब इन फैटी एसिड फैटी ऑक्सीडेशन डिसऑर्डर, लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर, है ना। तो ये वही CPT1 CP2 की तरफ इन्होंने डिटेल दिया नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो आपको बहुत सारे सोर्सेज से गो थ्रू होना पड़ेगा कि सो दैट अगर कोई क्वेश्चन नया बिल्ट होता है तो यू कैन डिफेंड दैट क्वेश्चन इजिली, क्योंकि आपको एक कमांड हो जाता है कि भाई हमने देखा है सारी चीज़ें, है ना। और कम से कम जो ब्लू वन में है, तो ब्लू वन वाला तो आप देख ही सकते हो, जो ब्लू में है यू कैन चेक आउट दैट, क्योंकि दूर से भी दिख रहा है कि क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या रोल है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, प्रोलैक्टिन, मेमोरी ग्लैंड discharge the fat into the milk that they produced under influence of हार्मोन प्रोलैक्टिन। तो ये भी पूछ सकता है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है कि भाई मेमोरी ग्लैंड का क्या है पूरा, क्योंकि वहां पे लिपिड ही तो जमा है ना। तो लिपिड का मूवमेंट कैसे होता है, बढ़ना घटना कैसे होता है, तो वहां पे ग्लूकोज कैसे आती है ब्लड स्ट्रीम में, क्या होते हैं मैकेनिज्म। तो आपको याद होगा ट्रांससाइटोसिस एक टर्म पूछा हुआ था मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड CSIR में, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ट्रांससाइटोसिस। तो ये मिल्क ग्लैंड जो होती हैं, राइट, वो अटैच होती हैं, ऐसे होता है स्ट्रक्चर ना। तो ट्रांससाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू ही मिल्क यहाँ तक पहुँचता है, राइट। तो ये CSR ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, ओके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप थोड़ा डाइवर्सिटी बढ़ाओ नॉलेज का, कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, कुछ मतलब यूनिक सा सोच सकते हैं। जैसे अभी मेरे ध्यान में आया कि मेमोरी ग्लैंड पे उन्होंने क्वेश्चन काफी पूछा हुआ था, है ना। और वहां पे क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड में ही कन्वर्ट होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वही मिल्क में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज व्हाट, ग्लूकोज, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ट्राइग्लिसराइड में, ठीक है ना। तो वो लिपिड के रूप में जमा होता है, फिर लिपिड वही रिड्यूस होने लगता है फैट ड्रॉपलेट्स में, फैट ड्रॉपलेट्स में फिर कन्वर्ट हो जाएगा फिर फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो ये भी पूछ सकता है कि मेमोरी ग्लैंड में जब फैट ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो वहां पे ग्लूकागॉन हार्मोन एक्टिव है या इंसुलिन,
तो आपको इंसुलिन को इग्नोर करना है, क्योंकि इंसुलिन तब एक्टिव होगा जब ग्लूकोज हाई होगा, ग्लूकोज लो होगा तभी फैटी एसिड की बात आएगी, तो ग्लूकागॉन विल बी देयर। तो mammary gland discharge the fat into the milk that they produce under influence of prolactin। तो हम जो रेफरेंस बुक देख रहे थे वहाँ पे ये सारा डिस्कशन नहीं था, बट चलो अच्छा हुआ हमने देख ही लिया। देयर इज नो हार्म। पीएलसी का डिस्कस कर लिया, फास्फोलाइपेज सी, फास्फोलाइपेज ए, डॉग है ना, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये सारा सिलेबस में है नहीं, तो आदमी का ध्यान जाता नहीं है, राइट। वहाँ पे खाली मेटाबॉलिज्म एक वर्ड दिया है, तो मेटाबॉलिज्म में अब क्या क्या पढ़ना है दैट इज not defined, but you can go through the variety of sources कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या एप्लीकेशन है। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल जाते, यू कैन गो थ्रू। माइटोकॉन्ड्रिया में बीटा ऑक्सीडेशन हुई, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, टीसी साइकिल हुई, तो वैरायटी ऑफ थिंग्स। तो क्वेश्चन मैं बनाना शुरू करता हूँ। शायद अलॉट भी कर दिया क्वेश्चन, नहीं अलॉट नहीं किया है, मैं अलॉट कर देता हूँ, नेक्स्ट वीक तक यू कैन गो थ्रू। ओके, प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। हमारा सॉफ्टवेयर बड़ा ज़बरदस्त है, इवन आप चैट में भी मैसेज भेज सकते हो, डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। खैर आप तो डायरेक्टली कॉल ही तो जान गए हो, तो यू नो मी बेटर, तो यू कैन डिस्कस ओवर द व्हाट्सएप। तो ये बेनिफिशियल पार्ट। अभी देखो सारे आ गए ना मेटाबॉलिज्म लिपिड के, लिपिड 1, चलो लिपिड 1 दे देते हैं, इजी वन है ये, ठीक है, ये इजी वन है। लिपिड 1 कर लोगे, देन लिपिड 2 दूंगा आपको। और इसमें कोशिश करना कि जो भी डाउट हो, यू शुड नॉट टच दैट, ठीक है, क्योंकि डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी। और आपने जो क्वेश्चन किया था, आई कैन शो यू, अच्छा इसमें अरे यार, हाँ ये आपने किया था 69। ये जो आपकी 9 क्वेश्चन हो गए ना, अब आपको दिखाता हूँ एनटीए स्कोर। आपका बैच रैंक तो वैसे बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आपका एनटीए स्कोर कैसे हमने कैलकुलेट किया, आई कैन शो यू। ये देखो 78% आ रहा है ना एनटीए स्कोर। आपका जबकि स्कोर है 69 आउट ऑफ 106, बट ये हाँ एनटीए स्कोर एक्यूरेसी वाला होता है। ये 9 अगर आपने मिस्टेक नहीं किया होता तो ये एक्यूरेसी स्कोर आपका 99 के आसपास पहुंच गया होता है। तो आपने देख लिया, मार्क्स से नहीं मैटर करता है एनटीए स्कोर, एनटीए स्कोर मैटर करता है एक्यूरेसी से। तो जो बच्चे ये चीज समझ गए वो अपना एनटीए स्कोर बढ़ा लेते हैं। जैसे आफरीन का था, तुम्हारे एनटीए स्कोर 93 के आसपास था। इतना स्कोर मेरे किसी बच्चे ने नहीं अचीव किया, इवन 90 भी नहीं टच किया। 6 बच्चे थे, ठीक है ना, लास्ट ईयर। तो मैंने ये देखा एक फैक्टर डिफरेंट था मोटिवेशन का, किसी वॉज वेरी मच मोटिवेटेड, और उसका मोटिवेशन का कारण था उसकी मदर। उसकी मदर बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, बट उनको एक्साइटमेंट थी कि हमारी बेटी पढ़े। वो मुस्लिम फैमिली की तरह नहीं सोचते हैं कन्वेंशनल कि हमें शरिया कानून की तरह चलना है। दैट इज ए जोक, है ना। उन सारी बेटियों को उन्होंने खूब पढ़ाया, अभी भी पढ़ रही है, उनकी 2-3 बेटियां हैं, बट काफी वो पढ़ाई। और ये लड़की तो थी कि मोटिवेटेड थी, बट रास्ता नहीं मिल रहा था इसको। और मैंने देखा काफी टैलेंटेड है, तो मैंने इसको मोटिवेट किया, हमने कहा ज्वाइन करो, लेट अस सी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने मारा 93 स्कोर। इसने 2 क्वेश्चन सिर्फ गलत किए थे, अगर 2 क्वेश्चन नहीं गलत करती तो मोर देन 95 आता। सिर्फ 2 क्वेश्चन का रिजल्टेंट बहुत बुरा हुआ, मतलब कितने हजार, 43 रैंक आई थी ऑल इंडिया इसकी। मैं इसको चाह रहा था टॉप 10 कैटेगरी में। मेरा भी सपना टूटा, उसका भी सपना टूटा। बट एनीवे दैट वाज गुड। तो ये आपको हमेशा याद रखना, करेक्ट आंसर 33, ठीक है, ये इग्नोर करना है इनकरेक्ट आंसर। बाकी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन का जो आपने एक किया था ट्रांसपोर्ट वाला, वो था 17 आई थिंक,
हाँ ये वाला, ये आपने सही किया था, क्योंकि इसमें पूछा ही वही था, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम मसिल टिश्यू टू लीवर, तो एलानिन साइकिल ही चलती है वहां पे। आर यू देयर? यस सर, यस। हाँ यही वाला आपको एडिशनल मार्क्स भी इसका मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो मैंने चेक कर लिया था, इसमें थोड़ा तुम कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, एक इसमें एक नहीं था वो भी, मतलब चमका, मतलब एसिटाइल कोए तो वही है ना हमारा ग्लाइकोलाइसिस वाला हाँ साइकिल है, मतलब वो हाँ ग्लूकोजेनिक होता है, ऐसे ही सोचना था। पता हाँ नहीं क्यों कॉम्प्लिकेट कर दिया सोच के। यही सर चीजें ध्यान क्वेश्चन रखनी। 9 में एक डाउट था मेरे को। हाँ, डज नॉट टेक पार्ट इन ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन में सीरिन नहीं जाता है। वो एक्चुअली उल्टा है ना, मतलब प्रोलीन, थ्रियोनिन और लाइसिन नहीं जाते ना ट्रांसएमिनेशन में, क्योंकि वो एक हमने तो क्लास में भी लिखा था कि वो प्रोलीन का जो होता है वो एक ट्रांसएमिनेशन के लिए जो चेक कर, अल्फा इसको चेक कर लेते हैं। हाँ शायद उल्टा होना चाहिए था कि रुको, एक मुझे का चेक कर लेते हैं। जाने पता अमीनो, क्योंकि नहीं। हाँ मेरे दिमाग में कैसे अमीनो एसिड डज नॉट पार्टिसिपेट, डज नॉट पार्टिसिपेट in transamination. Lysine, proline, threonine are the only three amino acids that does not. अच्छा ओके, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया गया है वहां पे। हाँ, मतलब which participates में से हाँ, ऐसा। डज नॉट नहीं पूछना चाहिए था, डज पार्टिसिपेट इन ट्रांसएमिनेशन। हाँ तो तीन इसमें से नहीं जाएगा, प्रोलिन, थ्रेलिन, लाइसिन और सेरिन में जाएगा। यस ठीक है, आपने अच्छा कि ये छोड़ दिया। हाँ, वही मेरे को वही लगा कि फिर टेम्परेचर थोड़ा गलत हो गया तो। इसको चलो मैं रिपोर्ट क्वेश्चन में कर दूंगा, तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन में लगता है ना, तो यू कैन गो फॉर द रिपोर्ट। रिमूव यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो हमें वहाँ पे दिखेगा जब हम जाएंगे एडिटिंग मोड में ना, रिमूव डज नॉट, बस। तो ये रिपोर्ट में आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि फिर वो ब्लॉक हो जाता है सारा, मेरा सिस्टम भी ब्लॉक हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन आप रिपोर्ट कर सकते हो, या ज़्यादा है वर्बली कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि रिपोर्टिंग में फिर ना वो सॉफ्टवेयर उन्होंने ऐसा बना रखा है कि मेरे एंड में फिर ब्लॉकिंग कर देते हैं कि इन्होंने गलत ही क्वेश्चन डालना है तो बंद ही करो। जो तो फॉलोइंग अमीनो एसिड, हाँ ये तो ठीक है कि ग्लूकोजेनिक था, ये तो हो ही गया था। जो अनअटेम्प्टेड था वो पहला तो क्वेश्चन ही नहीं था, कंप्लीट ही नहीं था, है ना। पहला क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं था, मैंने शायद ये डाला, पता नहीं कैसे छूट गया। वो कुछ ऐसे वर्ड लिमिट या ऐसा कुछ उसमें रह गया क्वेश्चन, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। मैंने तो क्वेश्चन डाला था, क्योंकि पहला क्वेश्चन में तो ऐसी गलती नहीं होती है, पहले ही क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाए। चलो आपके दो क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट सही थे इसमें, आपने 29 वाला छोड़ दिया था। ये पीएफके पे पूछा था, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको बताया भी था। एटीपी वाला कौन सा वो करता है, मोटिवेट करता है, वो ग्राफ से भी आपको वैसे हिंट मिल जाना था। इसको दोबारा पढ़ लेना, इफेक्ट ऑफ एटीपी कंसंट्रेशन। इसका राइट आंसर तो 3 है ना, ए एंड बी। रेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पीएफके इनिशियली डिक्रीजेज विद द एटीपी। मैंने बताया ही था कि एटीपी का उल्टा रोल होता है यहाँ पे। एएमपी आपको एक्टिवेट करता है, एटीपी डिक्रीज करता है। बाकी इन्होंने सारा एटीपी से रिलेटेड पूछा है, तो शुरू का इसलिए दे दिया था। बड़े क्वेश्चन में फायदा ही होता है कि थोड़ा क्वेश्चन आपको मिल जाता है। पोरफायरिन इज ए प्रिकर्सर ऑफ बाइल एसिड फॉर्म्ड बाय व्हिच पाथवे। ये पता है किससे बनता है? क्रेब्स साइकिल। आपको स्लाइड में सीधे सीधे मिलेगा आपको अगर पलटोगे। इसलिए मैंने कहा ना कि जब भी अटेम्प्ट करो क्वेश्चन, गो थ्रू द स्लाइड। जैसे आपको एक क्वेश्चन याद था कि वो डज नॉट नहीं होना चाहिए, डज होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आना, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम।
अमीनो एसिड विच इज एसेंशियल एंड ग्लूकोजेनिक, हाँ, वो एलेनिन ही है ना, क्योंकि मीथियोनिन तो नॉन एसेंशियल है। एलानिन है, एलानिन है, एलानिन, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो हमारे इस तरह के आजकल सीसार में दे सकते हैं, मतलब कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि क्या पूछ सकते हैं, राइट। हाँ तो हमें हर लेवल पे अपना स्ट्रांग पॉइंट रखना है, स्ट्रांग तैयारी करनी है। बहुत सारा खुला रहता है, मैं कभी कभी कंप्यूटर हैंग ही कर जाता है बंद करना पड़ता, टेस्ट भी मैं 21st क्वेश्चन भी जो मैंने गलत किया है। नॉट ए रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अरे ये तो बड़ा सिंपल था, मैं चेक किया था इसको। अरे कोएंजाइम की बात कर रहा है ना, कोएंजाइम में ऑलवेज देयर इज ए विटामिन ना, विटामिन, तो कार्बोहाइड्रेट, हाँ कार्बोहाइड्रेट वहां पे रहेगा ही नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है कोएंजाइम डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन, एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है कि नहीं पूरा? हाँ 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 मिलता है, मिलता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिखता। हाँ वो नहीं डाला है तो नहीं मिलता है। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि फिर वो इजी है तो हमने पढ़ाया ही हुआ है तो हो जाएगा। ये क्यों गलत कर दिया आपने? 25 वाला है ना, हाँ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन फॉर्म एटीपी फ्रॉम एटीपी पीआई यूजिंग लेज एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये तो वो तो था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो बनती है एटीपी, उससे रिलेटेड था। उसमें पूछा होगा वो स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाँ समझ गया। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अब आप डी से पढ़ना शुरू करो, आपको ज्यादा अगर घबराहट होती है ना तो गो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम डी। ए से ज्यादातर मेरी हैबिट है कि मैं ए से घबराता हूँ, ए पढ़ता ही नहीं। तो डिसीजन भी लेना देखो आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब डी हमें समझ में आ जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज व्हिच कैन डैमेज प्रोटीन लिक्विड आर फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें पूछा है विच वन इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है, तो ये रॉन्ग हो गया। सी में भी देख लो, अब डी वाले जितने कॉम्बिनेशन है सबको काट दो, देखो कितना कैसे नलीफाई करते हैं अपने काम को चालाकी से। इजी, हम लोग चालाकी तो बनना है। डी वाले सारे ऑप्शन काट दो, तो एक ही ऑप्शन है, थर्ड चला गया। ठीक है, अब सी गलत होगा तो सी वाले 2 ऑप्शन है वो भी चले जाएंगे। ऐसे करके करते हैं रूल आउट। सी वाला भी पढ़ना ही है, बस वो चाहते हैं कि आप सर सही है ना। रिएक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन प्रोड्यूस हाइड्रोजन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, फ्लो ऑफ हाइड्रोजन आयन बैक अक्रॉस द, बैक कहाँ होता है? बैक अगर हो जाएगा तो एटीपी सिंथेसिस नहीं होगी ना। फ्लो तो हो गया, फ्लो वाला सेंटेंस करेक्ट है। और फ्लो होके वो जो एटीपीएज होता है, जो मोटर होता है, उसमें चला जाता है, वो बैक थोड़ी ना होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि नल का पानी आ रहा है और फिर वापस चला गया, तो हमें तो मिला ही नहीं कुछ जैसे आया वैसे चला गया है ना। तो ए एंड बी आंख मूंद के मारो करेक्ट। देखो सी वाले हमने सारे ऑप्शन काट दिए, अब तुम खुद ही डिसाइड करो कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमें नहीं पता है ए एंड बी, फिर भी हमने मारा एंड रिस्क लिया, करेक्ट है, जबकि हमें आंसर नहीं पता है। बट कैसे रिस्क लेना, दैट्स आई एम टीचिंग यू। ठीक है, और ये ध्यान में रखना कि कभी भी वीडियो में फैशन के लिए नहीं बनाता, इसलिए मैं यूट्यूब पे ज्यादा फेवरेट नहीं है मेरा कि यूट्यूब में चलाऊं चैनल। कारण ये है कि हम बहुत सारी अनऑफिशियल डिस्कशन करते हैं, है ना, और वो चीज प्रोफेशनली नहीं बनती है। जैसे मैं यहाँ पे विकिपीडिया खोल रहा हूँ, आर्टिकल खोल रहा हूँ, तो देखने वाला कहेगा पागल हो गया क्या। मैं फैशन नहीं कर रहा हूँ भाई, नॉलेज दे रहा हूँ। मुझे ध्यान में आ गया, मैंने भाई सडनली खोल दिया विदाउट एनी प्लानिंग, और मुझे कुछ नई चीजें मिल गई। तो हमारे एक बच्चे में कैलकुलेट हो गई हैबिट कि चलो यार देख लेते हैं, है ना, ये कुछ नई चीजें ना हो उसको नोट्स में डाल देते हैं या डिस्कशन के पार्ट में डाल देंगे। जैसे मेरे से अगर मिस हो गया तो डिस्कशन के पार्ट में डाल दिया। जैसे मैक्सिमम चीजें तो डिस्कस हो गई, यू हैव सीन दैट। ब्लड ब्रेन बैरियर का नाम नहीं लिया, है ना, तो एक नई चीजें मिल गई कि चलो भाई ब्लड ब्रेन बैरियर था तो इसलिए नहीं गई, है ना। तो इस तरह से कुछ नई चीजें मिलने से कवर अप हो जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। अब तो यहाँ भी पहले ही लाइन में मिल गई व्हेन आई सर्च दिस, है ना। तो इवन यू कैन सर्च आउट कि अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप सीधे सीधे सेंटेंस टाइप करो एंड यू विल फाइंड द आंसर इमीडिएटली।
तो यही सब ट्रिक एंड प्रैक्टिसेस हैं जो टीचर डालता है स्टूडेंट्स में। तो टाइम की ऑलवेज रिस्पेक्ट करना, और वो तुम कर रही हो। और बाकी लोगों ने देखो एनरोलमेंट भी किया है ना, यू कैन सी द नंबर ऑफ एनरोलमेंट इज देयर, 6 स्टूडेंट्स आर देयर बट ओनली 1 इज सीरियस। तो हाउ यू कैन थिंक कि वो लोगों ने कभी रिजल्ट लाना भी है, और सारी लड़कियां हैं। हमारे मेरिट लाइफ साइंसेस में लास्ट 6 बैच, अभी 6th बैच है हमारा, ये चल रहा है, सारी गर्ल्स ही रहती है मैक्सिमम। बॉयज ओवर स्मार्ट होते हैं, पैसा पॉकेट भरा होता है, पापा ने देना होता है, ठीक है, तो वो इस एक्सपेंडिचर वहाँ करते हैं जहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि वहाँ पे उनको बेस्ट क्वालिटी मिलती है। ज़्यादा पैसा दे के आप अच्छा सामान खरीदोगे, इसकी गारंटी कहाँ है, राइट? तो आपको कौन सी कमी है? एवरीथिंग आई एम गिविंग यू, है ना, सॉफ्टवेयर है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, अच्छा ये भी देखो, हेलो, ये टाइम भी पर क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है कि आपने कितना टाइम लगाया। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इतना एडवांस है, एवरी क्वेश्चन पर क्वेश्चन देखो 0.04 सेकेंड लगाया आपने, राइट? 0.35 क्वेश्चन सेकेंड में आपने गलत कर दिया, मतलब डिसीजन टाइम थोड़ा ज्यादा होता तो शायद आप यहाँ सही कर लेते। और जो छोड़ा उसको आपने 1 मिनट तक पता नहीं क्या किया है। इतना टाइम का बैलेंस रखना है कि जैसे ये थोड़ा डिस्क्रिपेंसी आई, भागो, है ना। आपने जो करेक्ट किया उसमें 2 मिनट लिया है, तो एवरेज टाइम आपको एग्जाम में 2 मिनट मिलना है, आपको नोट कर लो। 2 मिनट का बैलेंस। तो ये मैं देख रहा था कि आपने ज्यादातर जो करेक्ट किए हैं विद इन 1 मिनट किए हैं, एवरेज आपका जो मैं देख रहा था। यहाँ पे 10th में आपने पता नहीं क्या 4 मिनट लगाए हैं, 4 मिनट, जबकि आपको दूसरी स्लाइड है ये कि कौन सा एल अमीनो एसिड एंड डी अमीनो एसिड, तो मैंने बताया था कि एक्टिव मोड में कौन सा जाएगा और पैसिव मोड में कौन सा जाएगा। तो इतना आपने टाइम नहीं लेना था। टाइम का हमेशा आप केयर करो। टाइम मैंने ओवर दिया हुआ है, मतलब काफी ज्यादा दिया हुआ है, इसलिए कि, है ना, टोटल आपने 130 आवर्स में से 123 मिनट लगाए हैं। तो इसको मैं इनअप्रोप्रिएट कहूंगा, क्योंकि 60 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखो तो हाउ मच नंबर ऑफ क्वेश्चन इज देयर, 69 47 क्वेश्चन, हाँ 40, हाँ ये है ना 47 क्वेश्चन। तो 47 इंटू 2 कर लो, 48 इंटू 2 कर लो, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो 48 इंटू 2 आपको मैक्सिमम जो टाइम मिलता है वो है 96 मिनट, यानी ठीक ही है, 60 + 30 सही है टाइम अब लिया आपने। बट वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहीं 4 मिनट ना ले, है ना, 4-5, हाँ नहीं 4-5 मिनट नहीं लेना है वो। तो देखो आपको इंडिविजुअल मैं केयर कर रहा हूँ ना, आप एक स्टूडेंट हो या 2 स्टूडेंट हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, 10 स्टूडेंट हो तब भी मैं इक्वली अटेंशन देता हूँ। बट आपको मैंने देखा कि आप को एक एक चीज़ की एनालिसिस आपको मैं दे पाता हूँ, दैट इज़ वेरी गुड। और सॉफ्टवेयर हमने बहुत केयरफुल्ली सारा कुछ बनवाया हुआ है, काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। तो मैंने कभी अर्निंग के लिए खोला ही नहीं इंस्टीट्यूट, मेरा एक पैसन है, आई एम रिसर्चर बेसिकली, ठीक है ना। मैं बहुत पैसिनेट हूँ नॉलेज देने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, बिकॉज हमारा माइंड का जो थर्स्ट होता है ना, हम कुछ भी कर लें वो शांत नहीं होता। अगर अच्छा नॉलेज हमें मिल जाए तो अचानक से बहुत हैप्पीनेस होती है। तो आई लर्न इन माई लाइफ, है ना। तो आप जैसे चैलेंजेस फेस करे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, 31 आपने करेक्ट किया है, दैट इज वंडरफुल। इन रिलेशन अबाउट ये क्वेश्चन तो बहुत ही टफ लेवल का था, मैंने डाला था। जैसे इसमें एक ऑप्शन आप देखोगे टफनेस लेवल भी है, अभी मैंने वो अभी डालना नहीं स्टार्ट किया है, बट कुछ दिनों में मैं इसको डालूंगा। वो क्वेश्चन में वो बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, इसीलिए वो हो गया, क्योंकि वो वैसे भी ग्लूकोज एंड कीटोजेनिक तो नहीं है। हाँ इनकरेक्ट है उतना था बस, बाकी फिर करेक्ट है। मतलब कंफ्यूजन वाला था। ये क्वेश्चन का टाइप करने का टाइम नहीं था, तो मैंने ऐसे फोटो डाल दिया था। इन ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिस्टीन्यूरिया विच आउट ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड नॉट सीन इन यूरिन ऑफ अफेक्टेड पर्सन। ये भी आपने सही मारा है, सेकेंड वन, दैट वाज द
मेथियोनिन, एसेंशियल अमीनो एसिड तो जाएगा नहीं सिस्टीनेरिया में, करेक्ट। डोपानिन, ये डोपानिन का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने पूछा, पढ़ाया भी था मैंने इसको, टायरोसिन से बनता है। तो आपने इसमें देखो कितना कम सेकंड, 23 सेकंड में कर दिया था आपने। तो दैट इज द मतलब इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, कि जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना स्मूथली आपका रन करेगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी। 54 सेकंड में कर दिया, 1 मिनट में, दैट इज वंडरफुल। अब ये टाइम बचा के आप, जैसे अभी हम सेक्शन ए अलॉट नहीं कर रहे हैं, हाँ सेक्शन ए में आपको ये टाइम मिल जाएगा मैथमेटिक्स में, सेक्शन सी तो मैंने इनकॉर्पोरेट कर ही दिया था, इसलिए सेक्शन बी एंड सी कर दिया था इसको। हाँ देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने फिर से पूछा था, इन स्केलेटल मसल्स एक्सेस अमीनो एसिड जनरली ट्रांसफर टू पायरुवेट टू फॉर्म एलानिन। एलानिन वाला ही चलता है। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा क्वेश्चन, क्योंकि ये फोकस कर सकते हैं वो लोग। फास्टिंग स्टेट वाला बहुत फोकस किया मैंने, बहुत देखा है इसको। फास्टिंग स्टेट वाला अभी पढ़ाया भी है, फास्टिंग स्टेट कीटोन बॉडी यूज टू डिराइव एनर्जी इन विच ऑर्गन, ठीक है। तो ये लीवर में ही है, स्पेसिफिक है, बाकी जो लाइपोजेनेसिस है वो सब जगह है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। GDH एंजाइम पे देखो आया ही क्वेश्चन, कोशिश किया था बैलेंस बनाने की। डेमनेशन ऑफ एलानिन प्रोड्यूसर्स, अचानक से पूछ दिया तो बहुत सारे लोग भूल जाएंगे जब आपने फ्रेश पढ़ा हुआ है। तो लिंक बिटवीन यूरिक साइकिल एंड टीसीएस साइकिल इज बोथ मैलेटिस, ये बताया था आपको, साइकिल पिक्चर से बताया था आपको, हाँ, याद होगा, मैलेटिस प्रोटेस्टेटल, इसको याद कराया था। तो इसलिए काफी कुछ स्लाइड से ही बन रहा है। अभी मेरा जो प्रैक्टिस है ना, कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन स्लाइड से उठाऊं। तो आपको अब क्या करूंगा ना, अभी मैं पहले से बता दे रहा हूं, आई विल ट्राई टू मेक क्वेश्चन फ्रॉम ईच स्लाइड सो दैट आपका परफेक्टली रिवीजन हो जाए। पर्पज ये नहीं है कि मैं आपसे सबसे टफ क्वेश्चन पूछूं, पर्पज ये है कि आई हैव टू मेक यू रिवाइज एंड रिकॉल फॉर ईच एंड एवरी स्लाइड। तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो स्ट्रेटेजिकली वी कैन गो अहेड, ताकि आपका भी इम्प्रूवमेंट हो। बेसिकली आपके इम्प्रूवमेंट के लिए सारा काम है कि आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट हो, नॉलेज इम्प्रूवमेंट हो, प्रैक्टिस इम्प्रूवमेंट हो। देखो काफी टाइम हो गया, तो वी शुड गो, है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।